हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस मेकिंग साइंस अ पैशन। हमारा आज का टॉपिक जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है तुलसी क्लासेस चैनल में, आपका झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कोर्स बोल के, उसमें वेक्टर्स एंड मोशन चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट हो गया था। आज हम लोग करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स का क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। जिस प्रकार जैसे कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज ऑल्सो कॉल्ड vector product because the answer that we get, the result is a vector product. The result that we get with cross product has also a direction. So how to find the magnitude and how to find direction? Suppose a vector is a vector, another vector is vector b. Now if we will write cross product, then it will be written as a cross b. This is read as, how it is read? Read as a cross b. a cross b, इस तरह से इसे पढ़ना है, ठीक है? This is read as a cross b. तो वेक्टर a cross b, इसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. So what is the magnitude of this vector product? Magnitude of a cross b. This complete things, its magnitude is found out by writing magnitude of a multiplied by magnitude of b, and this is multiplied by sine theta. Theta is the angle between the vectors a and b, smaller angle. So what I will write, a cross b magnitude, this is equal to, that means a b, if arrow is not there, that means it is magnitude only, ab sine theta. Now ab sine theta, theta is the angle between a and b. Theta is smaller angle, again I am writing here smaller angle, always remember smaller angle between vector a and vector b. So a multiplied by b multiplied by sine theta. Now how to find direction? This is the magnitude, but it is a vector quantity. Cross product gives us a vector quantity. How to find direction? So if in a plane we will draw a and b like this, let me erase this, you see this, and I am erasing it. Now you see, if vectors are there, one vector is, this is a, this is vector b, vector a cross b. A cross b means either you can use your right hand and move your hand such that thumb is straight upwards and thumb will point where? If we will move from a cross b means from a towards b, from a towards b means my thumb is pointing inwards into the board. So into the page it is called, direction is into the page, and it is perpendicular. Always, I am writing here, always the result of cross product of two vectors, result of cross product of any two vectors is a perpendicular vector, is a vector perpendicular to the plane containing two vectors, containing those two vectors. अब ये इसका मीनिंग क्या है? What is the meaning of this thing? Means there will be a plane, any plane will be formed whenever two vectors are there, so they may reside on a plane. Now always in that plane, the resultant, always the result of cross product of any two vectors, there can be any two vector, it will be perpendicular to the plane. This is the plane which is containing vector a and b. Now the resultant, that is a cross b, will be always perpendicular to the plane. That means it will be perpendicular, either protruding outwards or going inwards. How to detect whether it is protruding outwards or the direction is inwards? Take your right hand, always remember right hand should be used. Then if it is a cross b, suppose this is a cross b. A cross b means from a to b you will move. So if I will move my curly finger like this from a to b, then this thumb is pointing inwards, so into the page, the direction is into the page. Or
Or the other thing to find the direction is right-handed screw rule. Right hand screw rule. What does this say? Right hand screw rule means if I will put a screw here, okay? अगर ये screw है, right-handed screw, यहाँ पे रखा मैंने, अब A cross B means from A towards B, like this. We have to rotate this screw in this direction, like this, because from A to B. So wherever tails are coinciding, the two vectors tails are coinciding, here put your screw, imagine a screw is there and we are rotating it like this. So what happens when we rotate any screw like this? You know, in real life when we rotate a screw, right-handed screw, that will go inwards. Generally screws are right-handed only. तो ये क्या होगा, ये अंदर की ओर जाता है. अगर यहाँ पर एक स्क्रू रखा जाए, यहाँ पर एक होल है और हम इस तरह से उसे घुमा रहे हैं, इस तरह से, तो क्या होगा, वो अंदर जाते जाएगा. So the direction is inwards by this rule also and by this rule also, simple rule. So two rules are there. So A cross B direction is perpendicular and into the page. Into the page. It is called into the page. Out of the page or into the page. This is into the page. A cross B from A towards B. In this direction you have to rotate your screw. The screw must be rotated in this direction. Means I am writing here, screw must be rotated in this direction. Now you can easily find whenever two vectors are given. And now one more thing, एक और चीज, what about B cross A? If I will reverse the situation, A cross B, its direction is into the page. But B cross A means from B towards A, like this. So my thumb is pointing outwards, that is out of the page, that direction. So let me erase this. And let me write here, but direction of B cross A. So you may note here that magnitude may be same, but B cross A, the direction will reverse. The direction will reverse is perpendicular, always perpendicular to the plane. Here also perpendicular, here also perpendicular. But B cross A means now you will rotate the screw. Now you will rotate the screw in this direction. So जब हम लोग स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं तो क्या होता है, कहीं भी अगर बोर्ड रहता है, आपका बोर्ड हो, दीवार हो, वहां पर स्क्रू जब हम ऐसे घुमाते हैं तो बाहर की ओर आता है, स्क्रू बाहर की ओर आता है. तो B क्रॉस A, दिस इज B क्रॉस A, यानी कि B से A की तरफ हमें जाना है, B टू A. तो ऐसे घुमाएंगे स्क्रू को तो बाहर आता है ना, जब हम लोग जो भी स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू घुमाते हैं बाहर आता है. सो परपेंडिकुलर एंड आउट ऑफ पेज, ये आउटवर्ड्स है, ठीक है, आउटवर्ड्स इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, और ये है इनवर्ड डायरेक्शन है. इस तरह से डायरेक्शन निकाला जाता है. ये तो हुआ कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ. अब जब क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले आपको क्या होता है, दो वेक्टर दिया रहेगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट डिटेक्ट करना पड़ता है. आपको निकालना पड़ेगा व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू गिवन वेक्टर्स. जो दो वेक्टर दिया रहेगा ना, दोनों कंपोनेंट में रहेगा. तो हम लोग अब जानते हैं आपका यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स I, J and K. Let me erase this. Cross product of unit vectors. Unit vectors means if axes are there like this, this is x axis, this is y axis, and unit vector along x axis is called I cap. Here it will be called j cap, and z axis is here like this. This is z axis. Now all these three are mutually perpendicular, means x is perpendicular to z, z is perpendicular to y, y is perpendicular to x, means each and every axis are perpendicular to each other. So ये थ्री डायमेंशनल है, 3D थिंग, ये आप लोग आसानी से जानते होंगे. 3D जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है यहाँ ओरिजिन होता है, ठीक है. क्रॉस प्रोडक्ट. नाउ आई कैप क्या होता है, ये इस पॉइंट पे आई कैप रहता है आपका. ये जो है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर लेंथ, दैट इज कॉल्ड के कैप. नाउ हाउ टू फाइंड व्हाट इज आई क्रॉस जे. इफ आई विल टेल यू वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, both these are unit vector, multiply the magnitude. Magnitude of I is 1,
magnitude of j is 1 multiplied by sine of the angle between them. Sine how much? I और j, I वेक्टर और j वेक्टर जो यूनिट वेक्टर उसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री. x and y 90 डिग्री. So sin 90 डिग्री. What you are getting? 1 1 into 1, that is 1 only. So I cross j is giving 1. What about I cross k? I cap cross k cap. This is equal to magnitude. They are unit vectors. Magnitude 1 into sine of angle between this. What is the angle between I and k? I means it is x axis. K cap means it is z axis. So angle is again 90 degree. Answer will again be equal to 1 only. Now you can see here that if we will find the cross product of two vectors in the same direction, cross product of two vectors in the same direction, that will be always 0. Why? क्यों होगा 0? If I will say I cap cross I cap, तो ये 0 होगा. Why? Because the angle between I cap और I cap यानी दोनों ही सेम है ना. I cap और I cap यानी x एक्सिस और x एक्सिस के बीच में कोई एंगल नहीं है. 0 डिग्री इज 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा? साइन 0 डिग्री 0 होता है. तो जब भी साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा तो आई कैप डॉट आई कैप जितना भी आपका मैग्नीट्यूड तो यहाँ 1 है और आपका एंगल 0 हो जाएगा, इसलिए 0 होगा. सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन इज 0. ये हो गया. अब इसे रिमेंबर कैसे करना? अच्छा, आई क्रॉस जे यूनिट इज 1. व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? आई क्रॉस जे यानी कि आई से आप जे की ओर जा रहे हैं, आई से जे की ओर जा रहे हैं. ये देखिए, इसे हम ऐसे बनाएंगे. इसे मैं इरेज करता हूं, ऊपर बड़ा डायग्राम बनाता हूं. ठीक है, एक्स ऐसे रहेगा. ठीक है, ये डायग्राम ऐसे रहेगा, एक्स वाई जेड. ठीक है, अब आई ये जो है इधर आई कैप होगा, ये आई कैप, के कैप और ये था जे कैप. ये डायग्राम आप लोग याद रखेंगे. ठीक है, अब आई क्रॉस जे क्या हो रहा है? आई से जे अगर हम लोग अपना हाथ आई एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस तरफ जाते हैं तो जेड एक्सिस तरफ आ रहा है, जेड एक्सिस तरफ आ रहा है. यानी कि आई क्रॉस जे गिव्स अस के कैप. आई कैप क्रॉस जे कैप गिव्स डायरेक्शन इज के कैप. Magnitude will be 1 only. I cross K, I cap cross K cap, I cap cross K cap. So I cap cross K cap means if I will move it like this from I to K, then what you will get? From I to K like this. This is I and this is, imagine this, I and K. So if this is 3-dimensional in the room, you can imagine. Now 3-dimensional, then it will protrude downwards. So that is my direction is coming. डायरेक्शन क्या आ रहा है आपका? ये हो जाएगा आई से जे, स्क्रू को रखेंगे आई से के की ओर ले जाएंगे, आई से के, यानी कि ये हो गया आई आपका इस प्लेन के ऊपर रखे, फ्रॉम आई टू के, दैट विल बी माइनस जे. यानी कि जे माइनस जे मीन्स नेगेटिव वाई एक्सिस, माइनस जे मीन्स दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस. J means J cap means y axis only, but minus J so negative y axis. So अब ये जो इतना बार आपको या तो थंब यूज करना या तो स्क्रू यूज करना, इससे आपको छुटकारा पाने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप यूनिट वेक्टर को जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कौन सा तीसरा यूनिट वेक्टर आएगा वो कैसे पता चलेगा. मैं इसे इरेज कर रहा हूं. ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिए, आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप. आप लोग यहां पे डायरेक्शन देखिए, आई से जे जब जाएंगे, आई क्रॉस जे गिव्स अस के क्रॉस आई गिव्स जे, दैट मीन्स प्लस, आई एम राइटिंग हियर प्लस. और एक और चीज होता है माइनस, जैसे कि आपका मैं समझा रहा हूं क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप. माइनस, यानी कि
ये डायग्राम आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या बताया गया, I क्रॉस J गिव्स अस K कैप, J कैप क्रॉस K कैप, यानी इस डायरेक्शन में जब आप आ रहे हैं ना J क्रॉस K, तब वो I कैप देगा। K क्रॉस I इस डायरेक्शन में, तो सारा चीज प्लस में होगा। what about I cross K? I cross K means you are moving in reverse direction. You are not moving in this direction. That means you are now moving anti-clockwise. This is clockwise direction. ठीक है, ये जो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये जा रहा है। तो यहां से आपको पता चलता है कि आई कैप क्रॉस जे कैप ये देता है आपको के कैप। जो बचा हुआ रहेगा वो आपका आंसर होगा। आई और जे हो गया तो के बचा हुआ है। अब जे से के अगर हम जा रहे हैं, जे कैप क्रॉस के कैप, तो इसके आगे क्या आ रहा है, आई कैप, तो आई कैप हो जाएगा आंसर। के क्रॉस आई यानी कि के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप हो जाएगा। यानी आपको देखना है कि आप जो मूव कर रहे हैं इसमें के क्रॉस आई जे क्रॉस, वो क्लॉकवाइज मूव हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो डायरेक्टली जो नेक्स्ट वाला है आपका यूनिट वेक्टर वो आपका आंसर होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, अगर मैं बोलूं आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप। अब आई क्रॉस के, जैसे यहां पे देखिए आप लोग क्लॉकवाइज जा रहे थे, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो बचा हुआ क्या है, जे है। आई और के हो गया तो जे है, तो जे कैप तो आप एज इट इज लिखेंगे, पर माइनस साइन आएगा, बिकॉज वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई क्रॉस के गिव्स माइनस जे, के क्रॉस जे, के कैप क्रॉस जे कैप, दिस गिव्स माइनस आई। क्यों, के जे हो गया, आई बचा हुआ है, सिंपल तरीका है, आई बचा हुआ है, के और जे हो गया आई, पर ये जो है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस रहता है इसलिए माइनस। एंड नाउ और क्या बचा, आई से के आगे, के से जे, जे से आई, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे एंड आई आर रिटन, नाउ के इज लेफ्ट, सो के यू विल राइट जे क्रॉस आई, जे कैप क्रॉस आई कैप गिव्स के कैप बट इन माइनस के कैप, बिकॉज व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम जे कैप टू आई कैप वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो गया। अब जो है एक बचता है लास्ट, जिसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा और वीडियो कंक्लूड करूंगा। मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से कोई दो वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, मैं देता हूं क्वेश्चन और उसी में समझा देता हूं, ठीक है। फॉर्म फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है, यानी कि अगर एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए दिया हुआ है आपको और वेक्टर बी भी दिया हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। आई जे के तीनों डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आपको दिया हुआ है a1 b1 c1, सपोज ये जो है आपका एक फॉर्मूला बनेगा, b कैप जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप, ये b2 a2 कुछ भी एक नंबर होगा कांस्टेंट, प्लस c2 के कैप, ये हो गया c2 के कैप। a and b vectors are given. Now how to find a क्रॉस b? a क्रॉस b कैसे निकाला जाए, इसका तरीका है डिटर्मिनेंट फॉर्म। जो लोग पढ़े हैं डिटर्मिनेंट वो तो कर लेंगे, 12th क्लास में है सीबीएसई में। ऐसे आप जान लीजिए यहां पे कैसे लिखना है, आई कैप जे कैप के कैप लिख दिए। ये आप लोग जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, यहां पे a1 b1 c1, ये जो है आपका a क्रॉस b है ना, a क्रॉस b, तो यहां आप लोग लिखेंगे a1 b1 c1। इसके जस्ट नीचे लिखेंगे a2 b2 c2, जो भी वैल्यू दिया हुआ है, a2 का वैल्यू रहेगा, b2 का c2 का, मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा। अब जो है क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट बन के आएगा आपका। पहले आप लोग इसको आप लोग ढक दीजिए, ठीक है, मान के चलिए इसे ऐसे समझते हैं, देखिए ये और ये अगर मैं क्लोज कर दूं, ठीक है, तो क्या बनता है आपका पहला लाइन और ये, तो बचता क्या है b1 c2 माइनस b2 c1। इसे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1, ये जो है इसके साथ आपका आएगा आई कैप, ठीक है। नाउ आई कैप जब भी यहां आएगा तो पॉजिटिव, ये साइन कन्वेंशन याद रखिए, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस में हो गया आई कैप। अब फिर यहां पे साइन दिए प्लस, ठीक है, प्लस दे रहे हैं लेकिन यहां माइनस चाहिए था, तो हम लोग रिवर्स करेंगे सिचुएशन को। यहां पे ये दोनों को ऐसे हम लोग ढके थे तो ये बचा था, ये 4 लेटर बचा था। अब इसको हम मिटाते हैं यहां पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप माइंड में यहां पे सपोज एक पेन रखा हुआ है इस लाइन पे और इस लाइन पे पेन रखा हुआ है, ठीक है, तो बचता क्या है, तो क्या बच रहा है देखिए, तो a1 c2 a2 c1 बच रहा है, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, B1C2 ऊपर से नीचे माइनस नीचे, पर यहां नेगेटिव है, नेगेटिव किसी चीज का क्या होता है, पूरा उल्टा हो जाता है। तो यहां पे ये पहले लिखेंगे A2C1 पहले लिखेंगे, ठीक है, A2C1 माइनस, ठीक है, माइनस A2C1 लिख दिए, A1C2। अब ये किसके लिए है, मिडिल वाला हमने क्लोज किया था ना ऐसे करके, तो यानी कि ये J कैप के लिए है, J कैप, फिर से प्लस साइन आएगा। अब यहां पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, डाउन टू अप, इस तरह से रहता है, ठीक है, इन केस ऑफ पॉजिटिव। लेकिन यहां पे नेगेटिव था इसलिए हम लोग रिवर्स किए। अब यहां पे देखिए, अब के कैप जब हम बना रहे हैं, इसे मैं इरेज करता हूं, थोड़ा थोड़ा करना होगा, ठीक है, ऐसे आप लोग माइंड में एक बार जब सीख जाएंगे तो आराम से कर लेंगे। इसे मैं इरेज करता हूं। अब इन दोनों को अगर ढका जाए, ठीक है, इसे और इसे, तो के कैप के साथ क्या हमें मिलेगा, A1B2 माइनस A2B1, अप टू डाउन माइनस अप डाउन माइनस डाउन अप, क्योंकि पॉजिटिव है तो हमें लिखना होगा के कैप जब लेंगे तो A1B2 माइनस A2B1 और ये जो हमारा के कैप के साथ आ रहा है, के कैप, ये आपका देगा ए और बी जो कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ उसका क्रॉस प्रोडक्ट, ये चीज देगा। इसे मैं इरेज करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार एमसीक्यू आएगा तो आप आराम से आंसर कर लेंगे। कैसे मैं दो वेक्टर लेता हूं जिसमें A1 B1 नहीं डायरेक्ट नंबर्स रहेंगे, उसे कैसे सॉल्व करना है, इसे मैं इरेज करता हूं, ठीक है। कि हमारा क्वेश्चन जो है एफ वेक्टर और आर वेक्टर दिया हुआ इन कंपोनेंट फॉर्म, हमें एफ क्रॉस आर निकालना है। एफ क्रॉस आर वही जैसे हमने अभी निकाला था ना आपका ए क्रॉस बी, उसी तरह हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज करेंगे, एफ वेक्टर क्रॉस वेक्टर आर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऐसे ही आई कैप, जे कैप, के कैप। अब जो है इसे हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। एफ क्रॉस आर निकालना, आर क्रॉस एफ नहीं, तो पहले एफ का लिखेंगे। क्या क्या है इसमें, A1 B1 C1, A1 B1 C1, तो A1 है 2, B1 है 3 और C जो के कैप के साथ है क्या है, -1 लगा हुआ है तो -1। उसी तरह आर वेक्टर के साथ आई कैप के साथ 1 है, जे कैप के साथ -1 है, के कैप के साथ +6 है। ये हो गया। अब वही चीज आप ऐसे जो ढकते हैं वो वाला चीज कीजिए, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, पहले आई कैप में जो है पॉजिटिव जाता है, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, और रिवर्स हो जाता है नेगेटिव में। तो पॉजिटिव है आई, तो आई में जब ये दोनों को ढक देंगे हम तो क्या बच रहा है, देखिए 3 × 6 माइनस -1 × -1, यानी कि 3 × 6 कितना होता है 18, माइनस -1 × -1 कितना होता है +1, -1 × -1 ये खुद कितना होता है, ये बन जाएगा +1, ठीक है, तो +1 हो जाएगा, -1 × -1 +1, यानी कि 18 - 1, और इसके साथ आएगा आई कैप आ गया, ठीक है। अब जे कैप के लिए प्लस साइन डाले, जे कैप माइनस में है, जे कैप जब ये पूरे कॉलम और ऊपर वाले रो को ढकते हैं तो क्या बचता है, अगर हम ये पूरा और ये पूरा कट कर दें तो ये बच रहा है 2 6 1 एंड -1। नाउ अप टू डाउन, नो पॉजिटिव नहीं, दिस इज नेगेटिव, सो डाउन टू अप मीन्स नाउ ये नहीं, पहले हम लोग ये करेंगे, ठीक है, 1 × -1, 1 × -1 जाएंगे इस तरह से लेफ्ट टू राइट, ठीक है। 1 × -1 कितना होता है -1, फिर माइनस साइन डालेंगे, 6 2 कितना होता है 12, ये हो गया, इसके साथ लग जाएगा जे कैप, प्लस साइन देंगे, फिर ये के में प्लस है, तो के में जब प्लस है, इसे मैं इरेज कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, के में प्लस है, के को जब हम ऐसे ढकते हैं तो क्या बचता है 2 -1 3 and 1, सो इन दिस वे फॉर पॉजिटिव, ये याद रखिए। अगर अप टू डाउन नहीं समझ में आ रहा है तो पॉजिटिव में दिस माइनस दिस होता है, और नेगेटिव में जो डायरेक्शन जाता है उसमें क्या करना है आपको, जस्ट रिवर्स कर देना है, उसमें पहले ऊपर की ओर जैसे जाएंगे माइनस, फिर ये नीचे वाला, जैसे यहां पे किए थे हम लोग, जे के लिए किए थे हम लोग 1 × -1, फिर -6 × 2 12 किए थे, 2 × 6 12, ठीक है। अब ये है पॉजिटिव,
पॉजिटिव में क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 माइनस 3 1 जा 3, ये हो गया, ये आ जाएगा k कैप। ठीक है, हो गया, ये सब मैं मिटा देता हूं फिर। ठीक है, ये समझने के लिए था। ठीक है, इसे रेड पेन से लिख देते हैं I, ये j कैप माइनस में 2, ये 3 था, ये -1 था। अब आपका आंसर आ गया आपके पास है। ठीक है, कितना हो जाएगा 18 - 1 17 I कैप -1 -12 -13 j कैप -13 j कैप, ये बन जाएगा -5 +-5 यानी कि -5 k कैप। दिस इज F क्रॉस R, तो इसमें आप टिक मार्क लगा के आएंगे। अब 2-3 प्रॉपर्टीज है क्रॉस प्रोडक्ट के, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। वो प्रॉपर्टी बोलते हैं, जैसे कि देखिए प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं। पहला प्रॉपर्टी बोलता है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, यानी B क्रॉस A और A क्रॉस B सेम नहीं है, वो माइनस हो जाता है, A क्रॉस B और माइनस B क्रॉस A। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था राइट हैंडेड स्क्रू रूल से। ठीक है, अब ये चीज हो गया। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, A क्रॉस वेक्टर B प्लस C, अगर दो वेक्टर को पहले ऐड कर दे, हम लोग ऐड करने जानते हैं वेक्टर को, उसके बाद A क्रॉस B प्लस C करें, दैट इज सेम एज A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C, ये चीज है। और जब भी दो पैरेलल वेक्टर होते हैं, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होगा। टू पैरेलल वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। कारण क्या है? वाई 0? बिकॉज एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 0, बिकॉज वी गेट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। एंगल क्या होता है? 0 होता है ना। टू पैरेलल वेक्टर्स मींस एंगल इज 0 डिग्री, एंगल इज 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री कितना हो जाता है? 0। तो ये 2-3 प्रॉपर्टीज थे। इस तरह से हमारा क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हुआ। इसके बाद अब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे और उसके अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाएंगे हम। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग तुलसी क्लासेस। सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियोस, लाइक इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।